Welcome to the Coffee with Women series with Rajni. And today we have with us PS, Prachi Sachdev, as we say. Right, Prachi? Yeah, PS. actually. And she's a fantastic writer, and I've been interacting with her from last 2, 3 days, and it has been such a pleasure to know. And as you know, that we keep inviting, change makers, all the confident women around into our this series, and we are very obliged to have you here, Prachi. Thank you. It's a pleasure being here, Rajni. Thank you for Thank having me here. And let me just quickly introduce all of you. Prachi is really a great writer. I'll not say upcoming because she has already written great 4 books so far. And what I've learned is that she's also a painter by passion, and she has, tried her hand in multiple forms of painting. Tanjore painting, I was listening from her some time back. Raising painting, she has done courses in that, and also she's I think an expert into parenting and child psychology. If I'm not wrong, I was reading somewhere you Yes. have a diploma degree into child psychology. Yeah. And I'm sure that you would have earned such laurels also as part of your parenting journey too. Once again, I'm happy to welcome you to the CWW series. And we are very delighted to have you here. I am happy to be here, Rajni, and looking forward to this conversation. Looks exciting. Great. So, as you know, that most of our audience is women, and definitely men. We cannot ignore them. Yeah. But yes, since we keep talking about all the change makers around, and being one precious today, I would like to understand from you your journey. When we say writer, right? Sometimes it sounds very heavy as an author, a writer, and when you publish things out, people read it. You get all the kinds of reviews. Rather, I was reading your reviews, like they are absolutely fanatic. But what pushed you towards your this journey? Like, was it like a childhood dream you always wanted to pursue? Was it part of, like, I was hearing from you, reinventing yourself journey of life? Because I know that you're a full-time mom of 2 kids. Yeah. Life takes us from so many on and off. It takes us away from a lot of things that we dreamt of, we wanted to do. Absolutely. Yeah. Actually, I never thought I will become a writer or an author for that matter, but I always had one dream. I started writing when I was in school. Okay. मैं तब शायरी लिखती थी. शायरी लिखते लिखते हिंदी पोएम, उस टाइम इंग्लिश पोएट्री मैंने बहुत लिखी, शॉर्ट स्टोरीज लिखने लगी. और मेरे को माय फादर यूज्ड टू लिसन टू गजल्स, गुलाम अली, जगजीत सिंह, तो वहां से मुझे पंकज उदास, वहां से मुझे गजलें सुनने का शौक हो गया. वो शौक ऐसा बढ़ा कि मैं खुद लिखने लगी. तो जब स्कूल में 11th-12th में थी, मैं तब I had filled up 7-8 diaries by the time I reached college. Wow. And diaries were filled with poetry, शायरी, short stories. पर कभी ना मैं किसी से शेयर नहीं करती थी, because that was like a personal thing for me. क्योंकि राइटिंग में करियर होता है. हमारे टाइम में कहाँ किसी को पता था कि एक आप राइटिंग में भी ऐसा करियर बना सकते हो, या ऑथर बनने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते थे उस टाइम पे. तो देखो, अगर आज तो इट इज रियली सिंपल. आई वुड से सिंपल देन एज इट वाज इन आवर टाइम्स, क्योंकि सेल्फ पब्लिशर्स इतने आ गए हैं. तो जब 2019 में ना 2019 में आई स्टार्टेड रिसर्चिंग. मैंने पोएट्रीज लिखी थी बहुत सारी, तो मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक पोएट्री की किताब छप जाए एंड आई बी वेरी हैप्पी. वो होता है ना, इतने सालों के बाद. आई वॉज एनीवेज 40+. अब उसमें मैं कभी इतनी ओवर एम्बिशियस नहीं थी कि एक करियर बनाऊं या कुछ करूं. सो आई वॉज हैप्पी लिविंग माई लाइफ. बच्चे थे, बच्चों को संभाल रही थी, घर देख रही थी. आई वॉज लर्निंग न्यू पेंटिंग टेक्निक्स, थोड़ा बहुत लिख लिया करती थी. तो आई वॉज हैप्पी. तो देन एक ड्रीम था बचपन से, मेरी कविताओं की किताब छपनी चाहिए. I found a publisher online, and by the time मुझे सेल्फ पब्लिशिंग का फंडा पता चला, लॉकडाउन लग चुका था. I said नहीं, लेकिन ये तो करना ही है. तो मैंने हाँ, लॉकडाउन से पहले, सॉरी, 2019 में, समवेयर अराउंड सितंबर और अक्टूबर,
मैंने कोशिश करके आई सेव सम मनी, मैंने फिर वो इन्वेस्ट किया। इट उस टाइम पे 20,000 मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। ओके। 20,000 अपने ऊपर स्पेंड करना, ऐसे तो हम स्पेंड करते हैं, बट अपने ऊपर स्पेंड करना कभी किया नहीं इतना बड़ा अमाउंट। मुझे लगा नहीं वो बहुत जरूरी है, मेरे को किताब चाहिए। मैंने वो स्पेंड किया। मेरे को जब हाथ में वो किताब आई ना पोइट्री की, रजनी, मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे लाइफ में ऐसा लगा कि इतना बड़ा अचीवमेंट है, इतना बड़ा अचीवमेंट। हालांकि छोटी सी चीज थी, पोइट्री की किताब छपी है मेरी, बट आई वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज ऑन क्लाउड नाइन। उसके बाद मैंने ये नहीं सोचा था कि that is the point, that is actually the turning point when I will start writing lot of books, Okay. not just Hindi poetry, but मेरा एक stream ही change हो गया। Okay. You know, I was blogging on parenting. Okay. Parenting पे blog जरूर लिख रही थी Before 2016 you से। started, I started blogging in 2016. Okay. And my daughter was my daughter is my is the second child. So Okay. she had started going to school, 3 साल की होगी, 2.5-3 साल की। And my sister pushed me, nahi, you have to, start writing again. कितने साल हो गए हैं? It's been 12 years, you did not write anything. And वो जो push मिला, I started writing blogs about my parenting journey on Mom's Presser. People started appreciating it. और वो appreciation ऐसा होता है ना, आपको इतने सालों बाद आपके किसी काम के लिए appreciation मिले। As women हमको ये लगता है ना, कोई तो appreciate करे हमारे काम को। Absolutely. तो वो जब appreciation मिला, sponsored blogs मिलने लगे, I started getting paid for my blogs that I used to write. Amazing. That was another kickstart. वहां से then I never looked back. मतलब एक blog के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, फिर बुक आ गई इन द मीन टाइम। बुक आने के बाद 2019 में बुक आई। बुक के बाद जो जोश चढ़ा ना, उसके बाद आई स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट। क्योंकि मैं स्कूल डेज में ना एक दिन में एक किताब खत्म करती थी। और मुझे लगा यार वो प्राची कहाँ चली गई। आई यूज टू रीड अ लॉट एंड मेरे को मम्मी से डांट पड़ती थी, कोई काम कह दो, एक हाथ में किताब होती है, एक तरफ से काम कर रही होती। इतना बुरा हाल था। You never knew, you always had those seeds. Exactly. You had that reading वाला, passion in you. रीडिंग का कीड़ा था वो, जिसे कहते हैं ना, खाना लगा दो बेटा, अच्छा मम्मा, किताब हाथ में और वहां पे टेबल, आई एम पुटिंग द टेबल। तो आई लव्ड दैट थिंग। और मुझे ना, मैं बच्चों को यही बोलती हूँ, तो बेटा आई रियली मिस दैट मी जो पहले हुआ करती थी। अब किताबें कैसे पढ़ती हूँ, अच्छा 10 मिनट दे दो, बुक पढ़ रही हूँ। ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं किताब पढ़ रही हूँ। आई मीन बिल्कुल आदतें ही बदल जाती हैं वे आफ्टर मैरिज, आफ्टर किड्स। आपकी प्रायोरिटीज कितनी चेंज हो जाती हैं। एंड नाउ दैट किड्स हैव ग्रोन अप, माय सन इज इज इन हिज टीन्स, माय डॉटर इज अ प्री टीन। तो अब मुझे ऐसे लगता है नाउ दे कैन अंडरस्टैंड, इफ आई आस्क फॉर मी टाइम, they will not come and bother me कि मम्मा को डिस्टर्ब करे। So I get time to read and write also. Yeah, and sometimes you rightly said that me time is so important, Exactly. And being a woman, chasing through so many corners and situations in the life, sometimes like you said, I wanted to explore that Prachi जो पहले वाली थी, and I somehow हम कहीं खो जाते हैं ना रजनी, we get lost in everybody taking care of others. Yeah. We stop prioritizing ourselves. But my kids have actually taught me to prioritize myself. मम्मा आपका क्या, आप क्या चाहते हो, मतलब कोई पूछता नहीं है आपको आप क्या चाहते हो। And then I realized, yes, what is it that I really want? The question that bugged me, my son asked me, बहुत छोटा सा था, 3-4 साल का होगा, मम्मा आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? तो बड़ी तो मैं हो गई पर बनना क्या चाहती हूँ मुझे तब तक भी नहीं पता था। और जब लिखने की ये जर्नी, when my sister pushed me to start writing again, I realized I wanted to be a writer. Okay. And thankfully, by the time आजकल जो सिनेरियो है, with social media taking lot of weightage हमारी लाइफ में, right, content is the king, content is everything, and everybody needs content, and I am here to write that content. Absolutely. So everyone listening, Prachi is here. She's the content queen. Thank you. If you need any of her help in the content side of world, feel free. Please get in touch with me. And she has her own websites with just beingme.in. You can explore more about her from there. Yeah. But Prachi, coming back to that original question of like 4 books, right?
Yeah. And definitely, which I was checking, have been your bestsellers, and you contributed your all the content for each one of your kid, as I understand it, right? Yes, yes. So it's very intriguing for me, and I was like curious to anyhow ask you these questions. That what made you thought to write for your kids? Actually, about the first book, Hegel, Yes You, it is dedicated to my daughter. Okay, जैसे मैंने आपको बोला ना, we get lost in the journey. Somewhere down the line we lose ourselves. right, yeah. We play all sorts of roles, but we forget to play the most important role, that is being ourselves. So when my daughter was born, I promised myself मैं उसको इन झंझटों में फंसने नहीं दूंगी. You know, she has to prioritize herself, she has to live for herself, and then once she's happy with who she is, she can share that happiness and her life journey with everybody else, because that is how it should be. It is not taught to us. We have to learn it, sometimes hard ways, sometimes easy ways. Yeah. So and when this COVID came, after everything happened and second wave में, we lost a lot of people who were close to us. Friends, family. और तब ना एक बहुत बड़ा झटका लगा. अगर मुझे कुछ हो जाए, लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल इन दीज टाइम्स, अगर मुझे कल को कुछ हो जाए, माई डॉटर इफ शी गेट्स स्टक समवेयर एंड शी वांट्स टू फाइंड आंसर्स कि मम्मा होती तो मैं मम्मा से पूछ लेती, अब मम्मा नहीं है, किसके पास जाऊं? मैंने कहा मेरे पास कोई जायदाद छोड़ने के लिए इतनी एम्पायर नहीं खड़ा किया हुआ, बच्चों के लिए क्या लेगेसी छोड़ू? आई वॉन्ट टू लीव अ लेगेसी फॉर देम, बट इट हैज टू बी समथिंग जिसमें उनको मेरी झलक दिखे. द फर्स्ट बुक केम उस तरीके, क्योंकि ऐसी कितनी चीजें हैं जो मैं करना चाहती थी, बट कहीं ना कहीं सोसाइटल प्रेशर होता है हमारे पेरेंट्स पे, कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स को वो समझ नहीं होती, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग अलग तरीके से हुई होती है. तो मेरे आई एम रियली थैंकफुल, जिस टाइम पे हम थे लड़कियों पे कितने रिस्ट्रिक्शंस थे, आई एम सो थैंकफुल माय पेरेंट्स gave me the liberty to make my own choice, to make my own mistakes, to think about what kind of a life I would want to live. Right. मैं तो अपने पापा के दम पे इतनी चौड़ी होके आती थी गलतियां करके. तुमको पता है मेरे पापा कौन है टाइप्स में, वो लड़की थी. मैंने वो लाइफ जी है. But it's very important, like you said, right? That freedom to explore and identify yourself as a person regarding of your gender, because even boys, men, everybody do mistakes. Exactly. Categorize people with their genders. तो मुझे और मतलब I have one sister, one brother, both younger than me. और हमें तीनों को इक्वली रेस किया गया. और जब मैं अपनी फ्रेंड्स के फैमिली में देखती थी ऐसा कुछ होता है, जब पता चलता मुझे बड़ा झटका लगता था. मैंने कहा ऐसा तो हमने देखा ही नहीं, सुना ही नहीं है, सुना ही नहीं, देखा ही नहीं. और वो दैट वाज अ शॉकर फॉर अस. बट देन फिर मुझे यही लगा, मैंने कहा नहीं, मुझे मेरी डॉटर को वो सारी चीजें बतानी है, कैसे बैरियर्स ब्रेक करने हैं जो सोसाइटी आपके दिमाग में डालती है, उन नोशंस को कैसे तोड़ना है, कैसे चेंज करना है. यू हैव टू क्रिएट योर ओन रूल्स फॉर योर लाइफ. बी देयर फॉर एवरीबody, but be there for yourself also first. It's such a pious and a motherly thought, and can come only from a mother. Exactly. Who can think about कि मेरा बच्चे का कल को क्या होगा, who will guide and all that. And I'm sure, yes, COVID times have taught us a lot of things, but it's the full outcome of the COVID time thinking you did. And my request for all the mothers also listening here, just refer to Prachi's book. She has put some insights for her daughter, and I'm sure it's applicable to your daughters also. And it's there for sons also. The other book, Dear Son, You Can't Stay Little Always. क्योंकि बेटा बड़ा है, मैं वही देखती थी. मैंने कहा ये इतनी जल्दी बड़ा हो रहा है, बच्चे छोटे हर वक्त तो छोटे नहीं रहेंगे, नहीं रह सकते. And he said, मम्मा आपने पर्ल के लिए तो बुक लिखी, मेरे लिए क्या? What are you going to leave for me? Left out. Yeah, he felt left out. And it took me an entire year to think about what should I write for him that will be meaningful. And that will help him grow. And kids his age, like boys his age, teenagers. I realized teenagers को इतने issues होते हैं कई बार, क्योंकि जब इसके फ्रेंड्स घर आते थे ना, I realized बच्चे इतनी सारी बातें करते हैं हमसे, वही बातें कई बार बच्चा अपने पेरेंट्स से नहीं करता, नहीं कर सकता है. सही बात है.
And because I'm currently pursuing child psychology also for last few months, तो मुझे ये रियलाइज हुआ बच्चों में एक लालसा होती है, क्यूरियोसिटी होती है नई चीजें एक्सपीरियंस करने की, जानने की। पर वही टाइम होता है जब बच्चे गलतियां भी करते हैं। पर हर बच्चा गलती करके माँ बाप के पास बिना डरे करेज से जाके बता नहीं सकता। कई बार एम्बैरेसमेंट होता है, कभी डर होता है, बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं, उथल पुथल होती है। ये जो किताब है जो मैंने बॉयज को डेडिकेट करी है, बेसिकली अपने बेटे को डेडिकेट करी है, बट इट इज फॉर ऑल द बॉयज आउट देयर, टीनेजर्स। उसमें विजडम है, जो मैं कहूंगी, क्योंकि मैंने इस बुक के लिए ना पूरा रिसर्च वर्क किया, स्टार्टिंग फ्रॉम men aged 20 till 55. Okay. And I took their help, their guidance, their wisdom to formulate this book. Nice. Okay. So this book has wisdom of all those men of all the age groups to guide these boys of today and tomorrow. कि अगर आप लेफ्ट आउट फील करते हो, आपकी सेल्फ वर्थ में कमी है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आप इमोशनल मेंटल प्रेशर, पीयर प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर से, सोशल मीडिया के प्रेशर से कैसे डील कर सकते हैं, which men tend to go very often but they hide it. Exactly. And plus एक ना मुझे ये लगा, like my son is very emotional. पर मैंने कहा जो सोसाइटी का प्रेशर आता है, एक मैं हूँ जो उसे कहती हूँ बेटा रो, खुल के रो, रोना आता है तो यू नो वॉइस अप। लेकिन जो सोसाइटी है, जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जब वो रोता है तो क्या बोलते हैं, लड़कियों की तरह रोता है, सिखाया गया है तेरे को, बिकम अ स्ट्रॉन्ग मैन। अरे आदमी भी कमजोर हो सकता है, हम ये क्यों नहीं सोचते? वी हैव टू टीच आवर बॉयज दैट दे हैव एन इमोशनल साइड आल्सो। वही चीज आप दबा के रखोगे, बड़े होके गुस्से में निकालोगे, वायलेंस में निकलेगी, किस लिए? It's all under the bigger umbrella tree of gender subjugation. Exactly. So I wanted to teach boys their emotional side. So that is why that book is dedicated to boys. It's really beautiful to understand that you have kind of already left a kind of, not left, I'm saying, I should use the right words, a kind of a legacy for them, which is going to be there in the world always. I feel that is, मैंने कहा कल मैं नहीं होगी ना तो मुझे टेंशन नहीं होगी, मेरे बच्चों के पास मैं फिर भी हूँ। That definitely, but I think that is whatever. See how हम ये नहीं कह सकते मेरी लाइफ कितनी लंबी है, पर जितनी भी लंबी है उसके बाद मेरे बच्चों के पास मैं फिर भी रहूंगी। It's such a thoughtful gift for your kids, I believe, rather than leaving the money and the property and stuff. Yeah, exactly. Money, though I know they will earn. They have talent. They will make money. Give the skills, they learn themselves. Exactly. So, Prachi, one another question which is coming up in my mind is, at times when we chase our dreams, we also tend to get lost with a lot of things happening around our life, right? Yeah. What were your stumbling blocks? Were there any to reach to your dream? What's your journey to reach this point where you are today? Rajni, that's a very good question. और सच पूछूं ये सवाल ना हमें खुद से भी करना चाहिए. Every women need to ask themselves कि वो क्या रोड ब्लॉक्स हैं, क्योंकि रोड ब्लॉक्स जितने बाहर से आते हैं ना उससे कहीं ज्यादा हमारे अंदर से आते हैं. हमारी गिल्ट, हमारा वो खुद दूसरों को खुद से पहले रखना अपने को, अगर हम सफर नहीं करे तो हम अच्छी वाइफ नहीं है या अच्छी मदर नहीं है, ये नेगेटिव फीलिंग्स, एक थॉट प्रोसेस जो सोसाइटी ने बनाया है ना हमारे लिए, उससे अलग हटके सोचना पड़ेगा. क्योंकि हम खुद को इतने सारे गिल्ट के नीचे दबा देते हैं कि उससे बाहर लाने के लिए कोई मदद नहीं करता. और वो जब तक हम नहीं करेंगे कोई करेगा भी नहीं. बिकॉज वी टीच अदर्स हाउ टू ट्रीट अस. अगर हम कह रहे हैं हाँ आ जाओ तुम्हारे लिए पहले करेंगे, हम अपना टाइम का वर्थ नहीं देखेंगे, हम अपनी सेहत का वर्थ नहीं देखेंगे, हम खुद की सेहत नहीं मान रही पर हम दूसरों के लिए करे जा रहे हैं. वी विल नॉट आस्क फॉर हेल्प. अरे मैं कैसे, आई एम द लेडी ऑफ द हाउस, मैं हेल्प कैसे मांग सकती, क्यों नहीं मांग सकते? ये जो मेंटल रोड ब्लॉक्स है ना, ये हमें दूर करने बहुत जरूरी है. और ये हम खुद ही कर सकते हैं. आप ये बताओ, कौन आके आपसे ये पूछता है आज आप कैसे हो, आपका मूड कैसा है? आप सारे घर का ध्यान रख लोगे, सबसे पूछ लोगे भाई मूड क्यों खराब है, आपसे आके कोई नहीं पूछेगा. सिर्फ क्या बोलेंगे, अरे नैक कर रही है, बोलती जा रही है, चुप नहीं होती, आज फिर मूड खराब है, आज फिर तेरे पैरों में दर्द है, आज फिर कमर में दर्द है. अरे क्यों दर्द है, कोई पूछो तो सही.
अगर कोई नहीं पूछ रहा, हाँ, अगर कोई नहीं पूछ रहा, आप खुद वॉइस अप करो. Women have to start voicing up. आज मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं नहीं करूंगी, प्लीज मेक श्योर कि आप डिनर कैसे करोगे, या तो बनाओ या बाहर से मंगाओ. इट्स जस्ट एन एग्जांपल आई एम गिविंग यू. And situation, somehow you very rightly said that we tend to lose ourself in that process completely. Exactly. And at times we also just think of that this is what I am in totality, doing all these things for everybody. Because that is what we are conditioned. That is how we are conditioned actually. बचपन से लेके तुम्हें तो दूसरे घर जाना है, तुम्हें तो दूसरों के लिए करना है, And I'm sure सारा बोझ हमारे कंधों पे है. And I'm sure जब ये सुन भी रहे होंगे या आगे इस वीडियो को रेफर करेंगे, I think it's very much relatable to all the women. At least exactly. इसी कॉन्सेप्ट से, चाहे हम कितने ही मॉडर्न हो जाएं, चाहे हम मिलेनियम सिटी में रह रहे हो, बट वो जो एक माइंडसेट है ना, वो चेंज करने में टाइम लगता है. Exactly. And you very rightly said कि वो वॉइस अप करना, वो समझना अपने को क्या चाहिए, अपने को सेल्फ केयर और सेल्फ लव देना बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड आई एम श्योर आपके इस ड्रीम के जर्नी में भी आए होंगे ऐसे रोड ब्लॉक्स बहुत. बिल्कुल, ये तभी मैं बोल रही हूँ, ये सारी चीजें जो मैंने बोली है ना, मैं सोसाइटी से बाहर नहीं हूँ. मैं उस एक जो सेट पैटर्न होता है जिस हिसाब से हर घर चलता है, मैं उससे बाहर हुई नहीं. देन आई फाइनली हैड टू, जब बच्चे बड़े होने लगे ना, जैसे जब स्कूल जाने लगे, एंड आई रियलाइज आई हैड टाइम, बट वो टाइम मैं कैसे वेस्ट कर रही हूँ, यही सोच सोच के जब घर का काम मैंने मेड को डेलीकेट कर दिया, आई हैव लॉट ऑफ टाइम एट हैंड, फिर मैं क्यों वेस्ट कर रही हूँ. कुकिंग कुक कर सकती है, घर का बाकी काम मेड कर सकती है. when we have helpers at hand and we are earning pretty well, even if we are not earning, our husbands are earning, if they are earning well and we are living a good life, तो फिर जब हम काम जितना डेलीगेट कर सकते हैं वो डेलीगेट करना चाहिए. उसके बाद ये सोचना चाहिए मेरा ड्रीम क्या था, मैं क्या करना चाहती थी लाइफ में और मैं क्या कर रही हूँ. वी शुड ऑलवेज राइट. मैं हमेशा बोलती हूँ सबको, जो कभी कोई बच्चे आते हैं या कोई मेरे फ्रेंड्स हैं जो दे आर इन अ डायलेमा कि क्या करें, write the pros, write the cons, write what you want in life. Are you happy? Are you really happy or not? चेहरे पे खुशी रखना या एक स्माइल लेके दुनिया भर में घूमना, शॉपिंग करने जाना is not happiness. Not happiness. Happiness is what you are actually looking for within. कि जो आप ढूंढ रहे थे वो आपको मिल गया या नहीं. अगर आप पीस पे नहीं हो, आप सेटिस्फाइड नहीं हो जिंदगी से, तो वो हैप्पीनेस है ही नहीं. वो एक प्लास्टिक स्माइल लेके हम सब घूम रहे हैं. there is a प्लास्टिक स्माइल का कोई फायदा नहीं है. There is a difference, as we say, between a temporary and a permanent happiness. No? Exactly. And I had to come out of this mental roadblock. मुझे गिल्ट फीलिंग से बाहर निकलना ही पड़ा और खुद ही निकालना पड़ा. पर खुद को निकालने के लिए भी एक मैं सच बोलती हूँ, हम विमेन के पास एक सबसे बड़ी पावर होती है, हमारी गर्लफ्रेंड्स. जो हमारी फ्रेंड्स है ना, जो हमें पुश देके इन चीजों से निकाल सकती है, वो काम कोई और नहीं कर सकता. Those who understand us better because they're also living or breathing in the similar system, and they are also going through the same phase. अगर वो बाहर निकल चुके हैं या वो भी कोशिश कर रहे हैं, याद रखिएगा वो आपको हाथ पकड़ के निकाल ही लेंगे और आपको फिर वो काम अपने किसी और दोस्त के लिए करना है, या मैं कहती हूँ स्ट्रेंजर के लिए भी कर सकते हो तो बिल्कुल करो. बिकॉज एनी वुमेन यू फाइंड हु इज going down the pothole, you have to be वो कहते तिनके को, वो डूबते को तिनके का सहारा काफी है. तो आप वो सहारा बन जाओ, वो तिनका बन जाओ किसी के लिए, तो which is very important. Absolutely. I think I am able to resonate, and I'm sure everybody else is able to resonate, because I think we live in a similar kind of world where we have to see the brutal realities and act accordingly. Exactly. तो आँख बंद करने से ना रजनी, वही मेरे को लगता है, आँख बंद करने से काम नहीं चलता. आँख खोल के, कान खोल के, और किसी के लिए अवेलेबल हो सको तो वो सबसे बड़ी कामयाबी होती है जिंदगी. Right, exactly. So Prachi, it clicks me when you're talking about the other question actually I wanted to ask you was around, because you have written books for your kids, and also doing a child psychology course. How has been your own parenting journey and what has been your learnings from that? If you want to share some tips from that, I'm sure, the answers would be resonating to all the other mothers and women also listening to this, but definitely. Honestly मैं बताऊं, कई बार मुझे ऐसे लगता है
मैं बहुत ओवर प्रोटेक्टिव मदर हो जाती हूँ। मतलब जब बच्चे छोटे थे ना, मैं ओवर प्रोटेक्ट, मतलब मुझे लोगों को जो मेरे आसपास हैं जो हु रियली केयर फॉर मी, मुझे समझाते थे इतना ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होते, ओके। थोड़ा सा उनको स्पेस देनी चाहिए। ये गलतियां मैंने भी करी। हम्म। और मतलब मुझे ये लगता है कि बच्चों को ना शुरू से ही हम्म। ओवर पैम्पर नहीं करना चाहिए कि हम्म। आवाज निकाली और हमने काम कर दिया। ये मैं आपको अपनी गलतियों से, अपने एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ। मेरा जब बेटा था, अकेला था, व्हेन ही वाज देयर, वो मुंह से चीज निकालता था, हम लोग पूरी कर देते थे। अरे एक ही तो बच्चा है, एक ही तो बच्चा, अरे एक ही तो बच्चा है का मतलब ये थोड़ी कि आप हम उसे मनी का वर्थ ना समझाएं, या हम उसे ये ना समझाएं कि बेटा हर चीज मुंह से निकालते ही नहीं मिल जाती, हर नहीं। इच्छा पूरी नहीं होती। समटाइम्स यू हैव टू वर्क टू गेट थिंग्स डन, or हम्म। whatever you want in life, you have to work to get it. Either work hard or work smart. That's a choice that you have to make. राइट। You know? फिर उसके अलावा मुझे ऐसे लगता था जैसे मैं आई एम 24/7 इंटू किड्स, मैं कुछ और सोच ही नहीं पाती थी। वो ओके। एक ओवर प्रोटेक्टिव मदर होगी, एक हमेशा अरे मेरे बच्चे को जरा सा भी कुछ हो गया फटाफट लेके डॉक्टर के भागी। तो ओके। वी हैव टू वेट फॉर थिंग्स। तो अगर कुछ सीरियस नहीं है तो क्यों भागना है। मैं तो ऐसी ही फर्स्ट टाइम पे, तो जब फर्स्ट चाइल्ड था, मेरा बेटा हुआ, तो मैं बिल्कुल ऐसी थी। बाय द हम्म। टाइम आई हैड माई डॉटर, मैं ना थोड़ी सी मेंटली रिलैक्स्ड हो गई। कुछ भी होता था, नहीं नहीं, हम्म। आई एम एक्सपीरियंस्ड, अब मुझे पता है इतना भागना नहीं। तो मुझे ऐसे लगता है एक टाइम पे मैं ओवर पेरेंटिंग कर रही थी, एक टाइम पे मैंने ना बिल्कुल ही छोड़ दिया था बच्चे को, नहीं सब ठीक है, नहीं सब ठीक है। सो माय डॉटर इज लाइक, बिल्कुल वो टॉमबॉय होते हैं ना, हाँ। बस जो कह दिया, उसका अपना दिमाग चलता है। मतलब शी इज वेरी शार्प, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट। ओके। जो उसको करना है वो करना है। मैं हम्म। ना कहती रह जाऊं, बट उसने, वो बिल्कुल मेरे जैसी है जैसे मैं बचपन में थी। कोई मुझे ना कह दे, अब तो मुझे ये करना है क्योंकि ना कह दिया गया। एंड माई सन इज वेरी सेंसिटिव। सेंसिटिव होना गलत नहीं है, बट मैंने उसको ओवर सेंसिटिव बना दिया था। तो अब ओके। नाउ आई एम गेटिंग हिम बैक ऑन ट्रैक, कि बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही हूँ। डॉटर को थोड़ा ठहराव ला रही हूँ, बेटे को थोड़ा बोलना सिखा रही हूँ। नाइस। तो सो मुझे लगता है वो बैलेंस बना के चलना बहुत जरूरी होता है। हम्म। और दोनों के लिए पेरेंटिंग ट्रिक्स अलग अलग ही हैं। मैं दोनों को सेम पेरेंटिंग ट्रिक से नहीं वो बड़ा कर सकती है, मैंने देख लिया। So what you are saying is that we do not need to end up being an overprotective parents, and we do not need to pamper their all the desires what they ask for. They have to earn it before यस, asking for things. And I think that's what makes a true gentleman and a woman, as we say in the word, as they grow up. एग्जैक्टली। as Right. they grow up they need to make their own mistakes, no? If I keep telling them from my experiences were different, and if they are in the same scenario, they Hmm. need to make their own choices. I Hmm. can only tell them, or as a parent we can only tell our child, this is this is our perception, these are our suggestions, this can be the pros and these can be the cons. Pros Hmm. and cons के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। Right. They have to start making their own choices. Absolutely. What do you think, Prachi, that how the parenting has changed over some, decades? As we say, the parenting techniques have changed. We have started seeing a lot of parenting courses, and all these programs are also coming up. You can't treat the kids the similar way like we have been brought up, हाँ एक्चुअली by our parents. जहाँ कुछ भी गलती की तो दो तीन थप्पड़ आ दो जाएंगे दिन थप्पड़ और पड़ गए, और हम, पर वो हम बहुत ट्रैक पे भी नॉर्मल आ है। जाते। देखो हम हाँ। ट्रैक पे भी आ जाते थे। हाँ, एंड वो तो हमारे नॉर्मल भी होते थे, बट आज के बच्चों एग्जैक्टली, के साथ आप नहीं कर सकते ये सब। आज नहीं कर सकते क्योंकि देखो एक तो फैमिलीज न्यूक्लियर हो गई। पहले हम्म। जॉइंट फैमिली ज्यादा थी, न्यूक्लियर बहुत कम थी। और हम्म। आज बच्चे मोस्टली सबके एक ही बच्चे होते हैं। एक से अगर हम आगे बढ़े तो बस दो, पहले कितना 3 4 5 बच्चे होते थे। राइट। तो बच्चे ना आपस में ही लड़के झगड़ के एक दूसरे के साथ बड़े हो जाते थे। आज आप ये देखो, आई थिंक बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया लॉट ऑफ एक्सपोजर इज देयर, बच्चों के हाथ में सब कुछ है। बच्चे आंख ठीक से पहले बाद में खोलते हैं, उनके हाथ में मोबाइल पहले होता है। छोटा बच्चा है, राइम्स चला दी। अभी राइट। बच्चे को समझ कुछ आए या नहीं आए, पर हमने राइम्स चला दी, बच्चे को पता है कुछ चल रहा है, दे आर एंगेज्ड। और माँ बाप क्या है, हमें टाइम चाहिए तो बच्चे को फोन दे दो, हम्म। क्योंकि डिस्ट्रैक्ट करना है ना उनको, हमको बिल्कुल। अपने लिए टाइम चाहिए।
हमारे टाइम में क्या होता था, माँ बाप को डिस्ट्रैक्ट करना होता था हमें, तो क्या कहते हैं, किताबें पढ़ो, बाहर निकल जाओ, आउटडोर गेम्स प्लेग्राउंड खेलो। पे खेलो, हाँ। आज आउटडोर तो कुछ है ही नहीं है, एक तो सेफ्टी कंसर्न्स हो गए। बिल्कुल। हमारे टाइम में उतना सेफ्टी का प्रॉब्लम नहीं था, आसपास नेबर्स बात करते थे, पता चलता था कौन रहता है। तो अब जैसे जैसे फैमिलीज छोटी हो गई हैं, घर छोटे हो गए हैं, सोसाइटीज में रहने लगे हैं, आसपास कौन रहता है किसी को नहीं पता, बिकॉज बोथ कपल कपल दोनों वर्किंग है, हस्बैंड वाइफ बोथ आर वर्किंग। कनेक्ट होने का टाइम नहीं है कनेक्ट होने का सोसाइटी टाइम नहीं है, बच्चे किसके, या तो मेड्स के सिर पे हैं या डे केयर में है। में। अब बच्चा डे केयर में बैठेगा तो डे केयर में किसी के पास इमोशनल कनेक्ट बनाने का टाइम नहीं है, बच्चा मेड के पास है तो मेड भी कोई फिक्र नहीं करेगी। बच्चे को अगर डिस्ट्रैक्ट करना है तो क्या करो, या तो गिफ्ट से दो, और आजकल गिफ्ट में क्या होता है, फोन दे दो, लैपटॉप से दो, एंड किड्स आर बिजी प्लेइंग गेम्स, वॉचिंग यूट्यूब वीडियोस। ज्यादा से ज्यादा क्या है, पेरेंटल कंट्रोल लगा दिया, पर कितना पेरेंटल कंट्रोल कर लेंगे हम? बच्चा क्या देख रहा है, बच्चा क्या सुन रहा है, बच्चा पीयर प्रेशर में क्या चीजें कर रहा है, हमें नहीं पता। बच्चा जो चीज माँ बाप से सीखनी चाहिए वो दोस्तों से सीख रहा है। हम उम्र बच्चे एक दूसरे को सही गलत नहीं बता सकते, बिल्कुल। और अगर आज के टाइम में देखा जाए तो रीडर्स बहुत कम हैं, मतलब कितने पेरेंट्स है जिनसे मैं मिलती हूँ या बात होती है, हमारा बच्चा तो बुक्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, वो स्कूल की पढ़ाई कर ले वही बहुत है। Because they are getting that easy access to gadgets, right? एग्जैक्टली, एवरीथिंग इज लाइक, वो विजिबिलिटी इतनी है कि किताबों में पढ़ने के लिए इतना एफर्ट कौन लगाएगा? पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है कि बच्चे को वो एफर्ट लगवाएं, क्योंकि पेरेंट्स ही नहीं पढ़ते। हम, आप ये देखो ना, पेरेंट्स घर पे आते हैं, क्या हम अपना फोन ऑफ करके रख देते हैं कि चलो अब 8 बजे हम घर आ गए, अब हम सुबह तक अपना फोन नहीं देखेंगे? कोई नहीं करता। डिनर टेबल पे आजकल सब अपने अपने फोन लेके बैठे होते हैं। व्हाई? What do you think, Prachi? Like, what would be the tip or suggestion you want to give? Like, how should these be situations we tackle like this day? Like, see, honestly, I'll tell you, we there is no technique, there is no tip, there is no trick to tackle these situations, because 24/7 a parent cannot be with the child. और आजकल बच्चों को 12 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में फोन मिल जाते हैं। कुछ हमारी मजबूरी है, क्योंकि या तो सिंगल पेरेंट्स हैं या बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग एंड दे नीड टू कीप अ ट्रैक ऑफ वेयर द चाइल्ड इज। ठीक है, लीस्ट वी कैन डू इज, बच्चा देख के सीखता है। तो जब आप घर पे हो, एक फैमिली माहौल है, सारे हैं, okay, पेरेंट्स हैव टू स्टार्ट गिविंग अप ऑन देयर फोन टाइम। very important सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये, द मिनट यू कम इनसाइड योर, वॉक इनसाइड योर हाउस, स्विच ऑफ योर फोन। As a parent, they need to first learn the self-discipline. Exactly. आप सारी रात मत बंद करो, एटलीस्ट फॉर 3 hours, 8 to 11, आस्क द चाइल्ड। जब आप करोगे, तो जब आप वो करोगे, वो रूल बनाओगे, तो चाइल्ड ऑल्सो हैज टू फॉलो, बिकॉज अ पेरेंट इज फॉलोइंग इट। कहीं ना कहीं तो बच्चा भी करेगा कि हाँ, पेरेंट्स ने बंद किया है तो मैं, आज अगर मैं बोलूँ ना बच्चों को बेटा फोन बंद कर दो, ऑब्वियसली दे हैव अ जवाब, आपका भी तो बंद नहीं है, हम क्यों कर दें? ये हर पेरेंट का प्रॉब्लम है। तो आई थिंक इट इज अप टू द ओनस इज ऑन अस। हम कर सकते हैं तो बच्चा डेफिनेटली देख के सीखेगा। हम नहीं करेंगे, रात को जाओ, फोन लेने की बजाय किताब हाथ में ले लो। अगर हम बुक हाथ में ले लें, बच्चा बुक ले लेगा। अगर हम फोन हाथ में ले लेंगे, बच्चा फोन हाथ में ले लेगा। हम सुनते हैं ना बच्चों से भी, आप तो ये कर रहे हो, आप हमें मना कर रहे हो। एंड देयर इज वन ऑफ माय फ्रेंड व्हिच शी हैज रिसेंटली स्टार्टेड सेंडिंग हर किड टू अर्ली मेडिटेशन क्लासेस. Okay. And she said that first, before I sent her to meditation classes, I did the entire course. I am pursuing meditation. And now he understands and he cannot question back that why are you pushing me to go and learn meditation and how is it going Exactly. Because I've set that environment in the house कि meditation से मुझे ये benefit हो रहा है बेटा, और मैं meditation सीख रही हूँ. So we need to be as a parent a guiding light for our kids first. Before then pushing them कि भाई हम तो मोबाइल में रहेंगे और आपको यूज नहीं करना. वही ना, preach what you teach. तो पहले करोगे तो बच्चा सीखेगा ना, बिना आपके करे तो बच्चा करेगा ही नहीं. Yes, so very important point everyone over here, what Prachi is saying is that practice what you preach, right?
Before you tell it to your kids कि भाई ऐसे करो वैसे करो, आज की पेरेंटिंग टेक्निक है ये कि आप लेक्चर नहीं चलता आजकल, किड्स विल नॉट लिसन, वो इधर से सुन के ना इधर से ही निकालेंगे, वो इधर तक भी नहीं आने देंगे, बिकॉज दे नो वो इतने माइंडलेसली काम कर रहे हैं ना कि फोन हाथ में है। तो आप ये देखो ना, हमारे हाथ में फोन होता है, हम कितना माइंडलेसली उसको यूज करते हैं। 5 मिनट इंस्टाग्राम देख ले, 5 मिनट का 1 घंटा कब हो जाता है हमें नहीं पता चलता। We'll get into reels, then some WhatsApp will come and something or the other will keep coming, and then वो पिंग पिंग पिंग। जैसे अब मैं काम करती हूँ तो मैं साइलेंट मोड पे कर देती हूँ। भाई अगर मैं सपोज मेरे पास फोन ही ना होता या गुम जाता, एक सिनेरियो में सोचती हूँ, अगर मेरा फोन गुम जाता एंड somebody is trying to reach me, तो इसका मतलब वो काम 2 दिन 4 दिन 6 दिन टल सकता है, तो फिर अभी ही क्यों जरूरत है। Exactly. I'll tell you one of my experience, like it keeps happening with me. Recently in April, I went back again to Vipassana meditation, which is a 10-day meditation technique, and you live a very remote life. You do not use your mobile phone at all. Okay. So for 10 days, I was detoxed from everything, and I was looking the way we are naturally born in this earth. Yeah. The 11th day when I got my phone, I couldn't identify that it's my phone when I switched it on for a second. Almost the light, I just thought it's not, I've picked someone else's phone or something. And that was the feeling. And I was like, I was very normal last 10 days when I was not. Exactly. And the moment I got it, you must have started scrolling. Next was, I was busy. किसका message आया, किसका missed call है? See, that is what we are addicted to. अगर ये addiction छूट जाए ना, मुझे ऐसे लगता है एक लैंडलाइन होना चाहिए घर में, और उन लोगों के पास नंबर होना चाहिए who are very close friends and family, so that in case of emergency you are still reachable. Right. और घर घुसते ही सारे फोन ना, एक टाइम लिमिट होती है, 7 बजे के बाद कोई फोन ऑन नहीं होगा. It's only the landline that should be working. जैसे पहले होता था. I think going back to our thing of parenting tip, I think as an parents, as an elders, even in the house, I believe, look, कुछ लोगों के साथ elders भी रहते हैं, दादा दादी नाना नानी, और बड़े लोग भी रहते हैं. Even अभी भी कहीं कहीं थोड़ा बहुत joint family cities में है, तो I think हम सबको एक रोल मॉडल उनके लिए बनना है before exactly time, कि आप ऐसा करो वैसा करो, बिकॉज वो हमको देख के ज्यादा सीखेंगे. जितना आज की डेट में हम डिटॉक्स की बात करते हैं, बट इट कैन नॉट बी अ डिटॉक्स, पॉसिबल नहीं कर पाते ना उसको, बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग व्हाट वी आर टेलिंग. सो रादर देन लेक्चरिंग देम, वी शुड स्टार्ट creating that environment. And I think certain environment is important. Absolutely. And I think उसके लिए आप बोल रहे हो कि self discipline is very important for us also. Exactly. So Prachi, my next thing is, I know you have done a lot of work, and as you've been saying, you are reinventing yourself, reinventing your life, also figuring out a lot of other things you want to do in your life, apart from being a writer. And I think you're also pursuing your next book writing, which is in process. Right. Do you think, like, who is Prachi this day, and what are your current feelings when I ask you this question? Honestly, it's a very good question, and इसको reply करते हुए I am feeling actually powerful. Okay. जो प्राची खो गई थी ना, एक मैं कहूँगी एक डेकेड हो गया, more than a decade, that I was entirely lost, not knowing what I want to do. Once I reached 40, मैं ये सोचती थी 40 के बाद ऐसा क्या चेंज आता है that women posting, कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कह रहे हैं, and you start living your life, आप अपने हिसाब से जीने लगते हो. And when I turned 40, okay, सडनली वो मेंटल शिफ्ट आने लग गया. आई डोंट नो, मैंने कोई एफर्ट नहीं मारा, कुछ नहीं किया, बट क्योंकि मैं पढ़ती थी इन चीजों के बारे में, एंड देयर वर लॉट ऑफ अदर थिंग्स. आई हैव अ स्पिरिचुअल बेंट, मैं रिलीजियस नहीं हूँ, बट आई हैव अ स्पिरिचुअल बेंट. तो मैं पढ़ती हूँ बहुत सारी चीजें जो मुझे मोटिवेट करती हैं. एंड मुझे ये लगा, मुझे ये लगता है जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं विद एज, एक विजडम जरूर आता है, एक मेच्योरिटी आती है. एंड यू स्टार्ट रियलाइजिंग, अरे वो 4 लोग कौन है जिनकी मैं सुन रही थी आज तक, वो 4 लोग मुझे नहीं दिखे, बट मैं अंदर ही अंदर स्ट्रेस रहती थी. अरे वो 4 लोग क्या बोलेंगे, अरे वो, क्योंकि वो मेरा माइंडसेट, मेरा क्या सबका माइंडसेट होता है, अरे हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ करने से पहले हमें कैसा लगेगा, हम ये सोचते हैं अरे 4 लोग क्या बोलेंगे, अरे 4 लोग क्या बोलेंगे, बोलने दो, अगर वो भी मैं सोचूंगी तो वो क्या करेंगे, वो 4 लोगों को सोचने दो, मुझे मालूम ही नहीं है वो 4 लोग है कौन. तो जैसे धीरे धीरे जब मेरे बच्चों ने मुझे पुश करना शुरू किया ना, मम्मा आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, व्हाट इज योर लाइफ ऑल अबाउट, ओके, इट एक्चुअली हिट मी. दीज क्वेश्चंस आर
very relatable, I think, for every woman. कि हम करना क्या चाहते हैं, वी आर मैकेनिकली लिविंग अ लाइफ. सुबह होती है, वो दूध वाले भैया से लेके शाम तक, जब तक लॉक नहीं लग जाता और हमारी रसोई नहीं सिमट जाती, हमारे पास कोई काम नहीं है, बस हम ये मैकेनिकल करे जा रहे हैं. सुबह दूध देना है, सुबह दूध वाले की घंटी बजेगी, फिर मेड की घंटी बजेगी, फिर प्रेस वाले की घंटी बजेगी. अरे व्हाट आर वी डूइंग विद आवर लाइफ? हम क्या घंटियां ही सुन रहे हैं एक के बाद एक? हमें वो नहीं करना है. ओके. और जब मुझे रियलाइज हुआ, मैंने 12 आवर्स मेड रखी, सब काम डेलीगेट किया. भाई 11 बजे से मुझे जब तक बच्चे नहीं आ जाते 3 बजे तक, आई हैव टू कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस ऑन माई वर्क. उससे पहले मेरा घर का सारा सिमट गया. बता दिया मैंने सबको, काम बता दिया किसने क्या करना है. आई एम मेंटली फ्री. इफ आई एम मेंटली फ्री, आई हैव टू फोकस. आई हैव टू क्रिएट अ रूटीन इन माई लाइफ दैट इज एंटायरली फॉर मी. और इस वक्त मुझे ऐसा पावरफुल लगता है ना, क्योंकि मैं फोकस कर पा रही हूँ लाइफ में पहली बार. ओके. 3 किताबें 4 किताबें ऐसे ही तो नहीं लिख दी ना, फोकस किया तो लिखी. वही फोकस हर वुमन को करना चाहिए. टू स्टार्ट फोकसिंग योर एनर्जी ऑन योरसेल्फ. और मुझे ना अंदर से वो खुशी महसूस होती है. पहले हम क्या प्लास्टिक स्माइल लेके घूमते थे, मैं भी ऐसी ही थी. कहीं बाहर जा रहे हैं, प्लास्टिक स्माइल है, हाँ सब कुछ ठीक है. सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि अंदर उथल पुथल है. बिल्कुल. जब तक मेरे अंदर उथल पुथल थी ना, वो प्लास्टिक स्माइल को खुशी नहीं देती थी, वो सेटिस्फेक्शन नहीं आता था. मुझे अभी जहां जाना है, इट्स अ जर्नी. इट विल बी अ जर्नी टिल आई एम लिविंग. वो एक जर्नी रहेगी, एक पड़ाव के बाद दूसरा पड़ाव, क्योंकि मुझे खुशी है जो मैं अब हासिल कर रही हूँ. वो entirely मेरा एफर्ट है. You are internally happy. That's why I am internally happy. I don't feel powerless anymore. कि यार मैं दूसरों के दम पे बैठ लूं, कोई आएगा तो कराएगा, कोई आएगा तो मैं शॉपिंग जाऊं. आज अगर मुझे बाहर जाके अकेले भी लंच करना पड़ता है ना, इट्स अ डेट विद माई सेल्फ, आई विल गो. आई फील दैट पावरफुल. आई डोंट हैव टू वेट फॉर एनीबडी एल्स टू कम एंड टेल मी, अरे चलो आज डेट पे चलते हैं, आज कॉफी के लिए चलते हैं, आज खाने के लिए चलते हैं, आज. आई डोंट वेट फॉर माई फ्रेंड्स ऑल्सो. हर किसी के पास वो तब टाइम नहीं होगा जब मेरे पास टाइम है, और शायद मेरे पास तब टाइम नहीं होगा जब सबके पास टाइम है. तो आई स्टार्टेड डूइंग थिंग्स फॉर माई सेल्फ. कभी मेरा घर बैठ के काम करने का मन नहीं होता ना, मैं बरिस्ता चली जाती हूँ. आई गो टू अ कॉफी हाउस, आई गो टू चाय हाउस, आई सिट देयर एंड आई वर्क फॉर आवर्स. इट्स अ चेंज फॉर मी. Yeah. From the mundane. So I feel happy and powerful at the moment. So basically you're saying reinventing yourself, the journey of reinventing yourself is relatable to loving yourself more, giving yourself more me time, Exactly. getting that back. आप ये देखो रजनी, मेरी दोनों बुक्स में ना, हे गर्ल यस यू एंड डियर सन यू कांट स्टे लिटिल ऑलवेज, दोनों बुक में पहला चैप्टर सेल्फ लव का है. Okay. और ये सेल्फ लव मुझे मेरे बच्चों ने सिखाया है. मैं हर चीज मतलब वो लगता था कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन सी होती थी. मैं कहीं क्यों नहीं हूँ, व्हाई एम आई नॉट इन द पिक्चर व्हेन आई एम डूइंग एवरीथिंग. बट देयर इज नथिंग हैपनिंग फॉर मी. Because I was not thinking about myself. Because you're putting yourself in the back seat of Exactly. जब से मैंने खुद से प्यार करना शुरू किया, जब मुझे समझ में आया कि सेल्फ लव का मतलब शॉपिंग नहीं है, बाहर जाके एक्सपेंसिव खाना पीना, एक्सपेंसिव कपड़े पहनना नहीं है. It is taking care of my mental health, my emotional health, my physical health. It is understanding what my body is trying to tell me. It is understanding when my mind is tired. It is understanding when I have to say no. It is understanding about creating barriers. हर बंदा आपको खुशी देके नहीं जाएगा. There are a lot of people who are toxic for you, who will treat you like a dustbin, who will treat you like a trash can, who will treat you like a doormat. You have to stop allowing those people after a certain limit in your life. And when I started understanding, I started acting on those things. I started taking actions. It's very important point you have mentioned over here in terms of self-realizing journey. It's very important to exactly. And when we start doing that, no, a lot of toxic people will start getting out of your life automatically, because then they realize they have lost the power over you. Yeah, which is very important. You have to start regaining your power. And that is how मैं बचपन में ऐसी थी ना, मुझे वो माहौल मिला था बढ़ने के लिए, गलतियां करने के लिए, चॉइसेस करने के लिए. तो कहाँ खो गई थी मैं? बिल्कुल. I had to reinvent myself and I am thankful to my kids. अगर वो ये ऐसे
सवाल नहीं करते, जो मुझे यहाँ हिट नहीं करते, तो मैं कभी रीइन्वेंट नहीं करती. Your kids are godsend kids for you. Exactly, they are godsend, and they are the best thing that has happened to me. They have given you your life back, but then They have given me myself back to me. Nice. So, प्राची आप पावरफुल तो हो चुकी है, आई थिंक, एंड पावरफुल आप फील कर रही हैं, डे टू डे आप और रीगेन कर रही हैं इस पावर को और अपने जर्नी को और ब्यूटीफुल बना रही हैं. एंड इट्स आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट यू आर हैप्पी इंटरनली, नॉट विद दैट प्लास्टिक स्माइल. exactly. One thing I want to ask you to wrap up this entire session now. Of course, this is watched by a lot of people and women specifically, as I mentioned. What is that one takeaway you want to give from your life journey and your overall experiences, Right. personally, professionally, for all our women audience from this platform? See, this is one thing that I always say. I always tell to my friends also, and मुझे ये लगता है, being a woman, don't get lost in other people's life. You have the power to create whatever you want in life. जो आपके सपने थे, जो आपने सोचा था कभी आप करना चाहते थे, उसे करो, आज करो, अभी करो. Start making time for yourself. अपने लिए जिस दिन आप समय निकालना शुरू कर दोगे, everything else will fall into place. तो सबसे बड़ा यही है, chase your dreams. Don't stop chasing your dreams only because you are somebody's wife or somebody's mother, or है. हम सबकी लाइफ में कमिटमेंट्स होते हैं, सबकी लाइफ में ऑब्लिगेशंस होते हैं, बट सबसे बड़ा ऑब्लिगेशन खुद से होता है. और अगर हमने वो पूरा नहीं किया तो आई थिंक आवर लाइफ इज अ वेस्ट. कहते हैं ना, लाइफ का पर्पस ढूंढना. भाई, आदमी ही क्यों ढूंढे अपनी लाइफ का पर्पस? क्या औरत के लिए जरूरी नहीं है अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढना? एग्जैक्टली, वेरी तो इंपॉर्टेंट. यू फाइंड योर पर्पस ऑल्सो. मैं ये नहीं कह रही कि घर को त्याग दो, सब कुछ छोड़ दो, नहीं. सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है कि सबके बीच में रहते हुए भी आप अपने सपने भी पूरे कर रहे हो विदाउट डिस्टर्बिंग एनीबडीज लाइफ. क्योंकि जब आप वॉइस अप करना शुरू करते हो, अपने सपनों को चेस करना शुरू करते हो, बाकी सबको भी समझ में आने लगता है दैट यू आर देयर. हम इनविजिबल हो जाते हैं लोगों को, अपने ही फैमिली मेंबर्स के लिए सामने होते हुए, जबकि सब कुछ हम कर रहे हैं, फिर भी हम इनविजिबल हैं. व्हाई? बिकॉज हम बना देते हैं खुद को इनविजिबल. अरे नहीं, मेरा क्या है, उनका काम जरूरी है. बच्चों की पढ़ाई जरूरी है, ऑफ कोर्स जरूरी है, पर क्या आप जरूरी नहीं हो? क्या आपके सपने, आपकी इच्छाएं कब तक मारते रहोगे? नहीं मारना. मर मर के जिए तो जिया ही क्या, फिर तो हम वी आर जस्ट डेड, वी आर वॉकिंग डेड. तो वो नहीं बनना है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अलाइव हो जाओ, फिर से अलाइव हो जाओ. अपने आप को ढूंढ लो. Prachi saying, chase your dreams, be powerful, identify your life, be alive, जिंदा रहो, dead मत जियो. Exactly. है ना? एंड बहुत ढेर सारा कॉन्वर्सेशन प्राची, आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स टच किए, राइट फ्रॉम योर राइटिंग जर्नी टू री इन्वेंटिंग योर लाइफ, and what are the key takeaways for the women, what they need to self-realize to change their life, to parenting, to so many other topics we have discussed. It's been such a lively and such a nice discussion we had, and I'm sure it's going to help a lot other people as they watch this. And thanks again for being part of Coffee with Women series. थैंक यू रजनी, थैंक यू सो मच. आज मुझे इतना मजा आया ये बातें करते हुए, एंड आई होप अगर किसी को भी हेल्प हो सके, लाइक इफ वुमेन कैन एक्चुअली स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स, एक भी लाइफ टच हो जाएगी तो मुझे ऐसे लगेगा बहुत बड़ा काम हो गया. And see, this is the your humbleness, and I think that's why we keep calling such personalities in this channel, because we need the changes around us. We need the people who actually help each other, at least when we say the women to help women, exactly, the clan. And I think keep doing that great work, whatever you're doing. More power to you too. Thank you. More power to everybody listening it over here. And I would like to just say thank you, Rajni. You are doing a wonderful job, because जहाँ women start एक दूसरे को, जब women एक दूसरे को पावर देने लगते हैं, अपलिफ्ट करने लगते हैं, आई थिंक वो सोसाइटी का चेंज आने ही वाला है, और बहुत बढ़िया चेंज आता है उस टाइम पे.
in our family, our lives, and the entire community. So it's a great job that you're doing. It's a great initiative. Thank you so much for that. Thank you so much. And I think this keeps going with all the light and shine everybody brings in these conversations. Yes. And thanks again. And everyone keep watching the channel Rise with Rajni, the Coffee with Women series. This is going to be live soon. So stay tuned. And for more reference around Prachi's work, you can look at her site, justbeingme.in, Prachi, right? Yes, yes. And thanks again. Thanks. All right, Prachi. Thank you.